Hello students, now we will study our next chapter which is Memorandum of Association। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारा कंपनी लॉ का 6th चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। The memorandum of association is called that its charter is the company's principal documents. It refers to that document which defines the principal condition of which the company is incorporated. जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका एक सबसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। ये एक उसके जो ऑब्जेक्टिव्स और उसकी जो कंडीशंस का एक और उसके ऑब्जेक्टिव्स राइट्स का एक रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ अ पर्सन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी अबाउट something which is beyond or contrary to what is defined in the company's memorandum of association, the company is not bound by such contract. The main purpose of memorandum of association is to inform the shareholders, creditors and other dealer with the company about the sphere of the company's business. इसमें हम पढ़ेंगे, इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है। According to Lord Macmillan, the purpose of the Memorandum of Association is to enable the shareholders, creditor, and those who deal with the company to know its permitted range of enterprise. No company can be registered without a Memorandum of Association since it defines the rights and the objectives of the कंपनी। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर नहीं हो सकती बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अब हम सबसे पहले इसके पढ़ेंगे पर्पस, इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पर्पस या जो इसकी इम्पोर्टेंस होती है सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इट इज़ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। इट इज़ द बेसिक एंड मैंडेटरी चार्टर विदाउट विच द कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज़ एन अनऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट। Till 1890 in England, the Memorandum of Association of a company could not be altered. But considering the changed circumstances and condition prevailing in today's business scenario, it is possible within specified limit under the strict provision of the Companies Act that the method of alteration to alter the Memorandum of Association. कुछ स्पेसिफाइड और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है जिनके अंदर कंपनीज लॉ के इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऑल्टर अगर किसी को करना है तो वो कर सकते हैं, पर इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस। कंपनी में जो जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो उन ऑपरेशन की लिमिट्स को डिफाइन करता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द नेचर ऑफ द कंपनीज बिजनेस एंड द स्कोप विद इन विच द कंपनी इज टू function in its business activities. The company cannot go beyond the limitation defined in the memorandum. Next हमारे पास आता है it forms the relationship between the company and the outsider. The memorandum of association is an indicator or a guideline of the company's activities to outsider. It is a public document that tells others company's financials capacity and its capacity to make contract, its aim and its objectives and fields of activity. जो पब्लिक है, जो कंपनी से बाहर के लोग हैं, अगर वो कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक बारी स्टडी करना पड़ता है। इसमें इसके एम, ऑब्जेक्टिव और कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट लिखी हुई होती है जो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में एक रिलेशनशिप का वर्क करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट कंटेन्स क्लोजेस that give important information about the company. The relevant information include the name of the company, the name of its registered office, the company's share capital, where it is limited by shares or by guarantee, the objective of the company, its sphere of activities and its limitation. In short, it gives the viewer a picture of the company.
जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं जो किसी भी पर्सन को जो कंपनी से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, क्रेडिटर्स हैं, उनके लिए एक गाइड का वर्क करती है। इसमें कंपनी का नेम, एड्रेस, उसके शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर, उसके ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज़ और बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जो किसी भी आउटसाइडर के लिए, कंपनी के विदिन जो पर्सन वर्क करता है उसके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए कुछ कंपनीज़ की कुछ फॉर्म्स दी गई हैं कि इस फॉर्म की कंपनी को ये वाला टेबल फिल करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जो दूसरे टाइप की कंपनी है उसको बी टाइप की कंपनी, जो बी टेबल है उसको वो किस टाइप की कंपनी को फिल करना पड़ेगा। हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी आर सेट आउट इन टेबल A, B, C, D and E in the schedule 1 as follows। टेबल A, जो टेबल A एप्लीकेबल है वो है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, जो कंपनी सिर्फ शेयर से लिमिटेड होती है। जो टेबल B है एप्लीकेबल टू दोज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, जो गारंटी से लिमिटेड है और उसमें शेयर कैपिटल भी है। C जो फॉर्म है वो companies limited by guarantee and not having a share capital। Table D applicable to unlimited companies not having share capital, and table number E applicable to unlimited companies having share capital। तो ये जो फॉर्म्स हैं, अगर कोई कंपनी शेयर से लिमिटेड है उसको A फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके जो गारंटी से लिमिटेड है और पर उसके पास शेयर कैपिटल भी है वो B करेंगी, और जो गारंटी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल उसमें नहीं है तो वो C फॉर्म फिल करेंगी, और जो एप्लीकेबल हैं, जो कंपनीज़ अनलिमिटेड कंपनीज़ हैं और जिनके पास शेयर कैपिटल भी नहीं है वो D फॉर्म फिल करेंगी, और जो अनलिमिटेड कंपनीज़ हैं और शेयर कैपिटल भी है वो E फॉर्म फिल करेंगी। अब हमारे पास आके आता है कंटेंट, जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, वो आता है इसका कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन द फॉलोइंग फंडामेंटल क्लॉजेज विच हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कंडीशन ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है नेम क्लाउज। नेम क्लाउज में क्या आता है कि कंपनी का क्या नेम होना चाहिए और क्या नहीं। दिस क्लाउज कंटेन्स द नेम बाय विच द कंपनी is registered। The company's corporate name not only is the identification of the company, it also reveals its individual status. There is no restriction on a company on the selection of its name. It can choose any name, but the following legal formalities must be kept in mind while naming a company। वो कोई भी मतलब नेम चूज़ कर सकती है, पर कुछ एक इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं, उनको उसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास आता है इट मस्ट बी डिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के हिसाब से सही होना चाहिए। No company can be registered under a name which is inappropriate or undesirable in the opinion of the central government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली वो नाम इनअप्रोप्रिएट है और अनडिज़ायरेबल है तो कंपनी वो नाम अपने कंपनी का नहीं रख सकती। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम एंड नेम। वो एम्बलम और नेम के अकॉर्डिंगली प्रोहिबिटेड नहीं होता। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं अपने नेम के पीछे रॉयल, क्वीन, स्टेट, इम्पीरियल, एम्प्रेस, एम्परर, ये सारे नेम वर्ड्स जो होते हैं कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। तो ये कुछ प्रोहिबिशंस हैं जो कंपनी अपने नेम के साथ यूज़ नहीं कर सकती। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये फॉर्मेलिटीज़ भी कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी अगर लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसको लिमिटेड वर्ड अपने साथ यूज़ करना ही पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड और फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू
यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड। अगर कोई कंपनी लिमिटेड वर्ड नहीं लगाना चाहती तो वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफाइड कराना पड़ेगा कि वो अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज़ ना करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। The name of the company must be presented and published. The name must be prominently displayed on a signboard at the registered office and all offices or places of business of the company in English or the regional language. Next हमारे पास आता है अगला क्लॉज है हमारे पास सिचुएशनल और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी हम इसको बोलते हैं। दिस क्लॉज डिस्क्राइब the address, city, state in which the company's registered office will be located. Corporate identity number along with the telephone number, fax number, if any email, website address or other official publication. ये जो सिचुएशन क्लॉज है इसमें किसी भी कंपनी का जो लोकेशन होगी रजिस्टर्ड ऑफिस की वो डिफाइन की गई होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू एस्टैब्लिश द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइन इट्स nationality and the local laws that will govern its operation. It also established whether the company is an Indian or a foreign company. तो कंपनी से के रजिस्टर्ड ऑफिस से या कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वेबसाइट्स होंगी, इसकी एड्रेस, वेब एड्रेसेस होंगी, बिजनेस लेटर, बिल हेड्स, बिल पेपर्स, ऑल इट्स नोटिस और अदर पब्लिक ऑफिशियल पब्लिकेशंस भी सिचुएशन क्लॉज में कंपनी को मेंशन करने होंगे। इन जर्नल द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मस्ट कंटेन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इन केस इट इज़ नॉट गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, the relevant information must be sent to the office of the registrar of companies within 30 days of the date of incorporation. अगर मेमोरेंडम में वो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती है तो रजिस्ट्रार को 30 डेज़ के अंदर इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को कंपनी को देनी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट क्लाउज। It defines the objects or aim of which the company is to be set up. A company is not legally entitled to do any business other than what is specified in the object clause. This clause is meant to protect the interest of a company and public at large who deal with the company to come to know the limitation and power of the company. जो ऑब्जेक्ट क्लास है ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जो कंपनी के एम है ऑब्जेक्टिव है उनको डिफाइन करता है। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of the company and defines the object or aim for which the company is to be set up. A company is not legally entitled to do any business other than what is specified in the object clause. अगर object clause में बिजनेस की जो वो कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जो ऑब्जेक्ट क्लाउज में डिफाइन नहीं किया गया है तो कंपनी इसके लिए लीगली लाइबल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी लॉ के अंडर जवाब देने को। If a company crosses the limit of its objects and does same act which is beyond the scope of its activity, such act would be deemed to be ultra virus. अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट की लिमिट्स को क्रॉस करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। सच एन एक्ट ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड वैलिड इवन इफ़ इट इज़ डन विद द कंसेंट ऑफ इट्स मेंबर। अगर कोई कंपनी ऐसा अल्ट्रा वायरस जैसा कोई एक्टिविटी करती है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी चाहे वो उस कंपनी के मेंबर के कंसेंट से भी किया गया हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है लायबिलिटी क्लॉज। द मेमोरेंडम मस्ट कंटेन अ क्लॉज स्टेटेड दैट the liability of member is limited. The effect of this clause is that the liability of shareholder is limited to the nominal value of shares held by him in case his shares are fully paid up.
ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी मोर। अगर कंपनी इस क्लॉज में ये डिफ़ाइन किया जाता है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो वैल्यू पे करी है, उनकी जो शेयर्स की फुली पेड अप वैल्यू है, कंपनी उससे ज़्यादा उनसे उस मोर मनी उनसे नहीं मंगा सकती, इवन इफ़ द कंपनी ओ ह्यूज डेब्ट्स टू द क्रेडिटर्स। अगर एक कंपनी लिमिटेड है तो वो अपने शेयर होल्डर से उनकी जो शेयर्स की फुली पेड अप वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू की मनी वो नहीं कॉल कर सकते। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट एन अमाउंट मोर देन हिज गारंटी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो मेंबर से गारंटी से ज़्यादा की वैल्यू का अमाउंट नहीं मंगा सकती। तो इसमें यही डिफ़ाइन किया गया है कि भी कंपनी उसके शेयर से लिमिटेड है या गारंटी से लिमिटेड है या किस क्लॉज से वो लिमिटेड है। और अगर कंपनी अनलिमिटेड है तब वो अपने मेंबर्स से या शेयर होल्डर से या जो भी मेंबर्स हैं गारंटी से ज़्यादा की अमाउंट को वो कॉल कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल क्लॉज। द कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द nominal or authorized capital which the company proposes to be registered. The capital of the company divided into two categories, that is equity शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कैपिटल क्लॉज है, इस क्लॉज में कंपनी की जो कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल है, उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन किया जाता है कि कंपनी के पास कैपिटल किस वे में है। इसकी दो कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द कंपनी ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट इश्यू एनी शेयर एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ इट्स ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो ऑथोराइज्ड कैपिटल रजिस्टर्ड की थी, तो कंपनी उससे ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती until it completes the requisite legal formalities, जब तक वो इसके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर लेती। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएशन क्लॉज। दिस क्लॉज इज also known as subscription clause of the memorandum. The association clause must state that the person who are subscribing their signature to the memorandum and are the desirous of forming themselves into an association in the pursuance in the memorandum. Each subscriber must sign the memorandum in the presence of at least one witness who shall attest the signature. इस क्लॉज में इसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सब्सक्राइबर होते हैं उसमें उनके साइन की जो साइन को डिफ़ाइन किया गया है कि कितने जो सब्सक्राइबर ने इस पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ईच वन ऑफ देम एग्रीज टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स स्टेटेड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव नेम्स। उनके इसमें नेम्स, एड्रेसेस और फुली ऑक्यूपेशन को डिफ़ाइन किया जाता है इस क्लॉज में। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जिन्होंने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिग्नेचर किए हैं मेमोरेंडम के ऊपर। इसी के साथ हमारा मेमोरेंडम के जो क्लॉजेस का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड मेमोरेंडम के फॉर्म से या इसके क्लॉजेस से या फिर इसकी जो पर्पसेस और इम्पोर्टेंस से रिलेटेड या मीनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।